Good morning, class 9. Today we are going to start the topic about factors that determine the quality of populations. So yesterday we have discussed about women are paid low compared to men. Why this was the reasons behind. We have seen that because of illiteracy, because of uneducations, unskilled, those who are working in unorganized sectors, they have been discriminated, and for that reason they are not getting equal wages as compared to men. Again, we have seen that in the organized sectors, that is the women, those who are educated and skilled, they are getting same salary as compared to men, and the women, those who are working such as in health education sectors, health sectors, administrative sectors, army or police officers, pilots, etc. In these sectors, these have been organized sectors, so they are working and they are getting equal wages as compared to the men. Now today we are going to discuss about that factors that determines the quality of populations. Now what are the factors which determine the quality of populations? We have also already discussed about that. Human resources, that was education, we have discussed the same thing in educations. Then we will move to physical training and then health. So these three are the main important factors everywhere. Then it will turn into the population, turn into a quality of populations or human resources. So we will see the health. Education has a very important criteria. Now education's results not only in personal development, but it contributes toward the growth of society also. As you have been educated, you are not only increase your quality, but it will increase the quality of the society. Because if you are educated, you can educate your society, you help your society. So it promotes as well as the national income. When you start earning, your national income of the country will increase. You will put contribution in our cultural activities, and so that efficiency, गवर्नमेंट एफिशिएंसीज भी जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर इनकम रहेगा और एजुकेटेड पॉपुलेशन रहेगा तो गवर्नमेंट्स के भी प्रॉब्लम्स जो है बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को, हमें एजुकेशन को अपनाना चाहिए. ना एजुकेशंस में अगर हम आते हैं तो एजुकेशन जो है, अगर इसको हम लेवल वाइज डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अगर फर्स्ट में आते हैं तो प्राइमरी और एलिमेंट्री जो बेसिक होता है, बेस होता है, बहुत ज़रूरी है. अब वो मिडिल स्कूल तक चलता है. जैसे इट मेक्स द चिल्ड्रंस लिटरेट और डिसिप्लिन बनाया जाता है प्राइमरी में. ठीक है. इसके साथ रेट ऑफ लिटरेसी कंट्रीज़ में कि हाँ ये लोग भी जो है दे आर मूविंग टुवर्ड द लिटरेट में मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. सेकेंडरी जो है, यहाँ पे आ जाएंगे बच्चे 14 to 18 ईयर्स के. सेकेंडरी मीन्स अब यहाँ पे जो सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी हो जाएंगे. कौन से सीनियर सेकेंडरी? ये ऊपर वाला जो आ गया, ये मान लो आपको क्लास 6 तक हो गया. ये कौन सी क्लास? 6 तक हो गया. अब क्लास 6 के बाद 7 से जो है 8 ऑनवर्ड जो होता है, कहा जाता है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर आ जाता है फ्रॉम 8. तो ये आ गया फर्स्ट टू क्लास 8 मान लो, या 7 तक. और उसके बाद ये फ्रॉम 8 टू क्लास 12. तो ये जो है 8 टू क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हो शुरुआत हो जाती है यहाँ पर. और बच्चे जो होते हैं 14 से 18 ईयर्स के एज के होते हैं, एंड स्टार्टेड चूजिंग, कि फिर ये चूज़ करना शुरू करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है. इस तरह से वो डिसाइड करते हैं. सेकेंडरी, दैट वाज सेकेंड लेवल पे. थर्ड लेवल पे फिर वो ग्रेजुएट होते हैं. फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं 18 के बाद वाला, डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज को आगे लेके पढ़ते हैं. और उसके बाद फिर उसके आगे जाते हैं, दैट वाज पोस्ट ग्रेजुएट. ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हो गया. उसके बाद वो प्रैक्टिकल, जैसे हमने कहा कि प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स द पीपल एक्सपर्ट इन स्किल फॉर्मेशन एंड परस्यूइंग क्वालिटी जॉब्स दैट नीड स्पेशल एंड टेक्निक्स टू हैंडल ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये वाला हो गया हमारा फिजिकल ट्रेनिंग. तो अब हमने पढ़ाई तो कर ली, अब हमें क्या चाहिए? फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए. तो फिजिकल ट्रेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल ट्रेनिंग, अब ये फिजिकल ट्रेनिंग हमें कौन कर रहा है? ये लास्ट वाला. तो ये इस तरह से देखा जाए, लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें जो भी हमने किया उसे हमने प्रैक्टिकल में डाला, ताकि हमारी जो स्किल्ड है वो अच्छा हो जाए और हमें ईजिली अच्छा जॉब मिल जाए. परस्यूइंग मीन्स आसानी से हमें वो जॉब मिल सकती है.
because of whatever we have learned we have put in practical life and with the help of technical educations. इसी तरह से रेट जो है लिटरेसी रेट जो है धीरे धीरे इंडिया में अभी इंडिपेंडेंस में जो था 1950s के उस समय और अभी वाला दैट लेवल हैज़ बीन इंक्रीज्ड, बहुत अच्छा खासा लेवल जो है इंक्रीज़ किया है. सो वी आर मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ रहे, डेवलप्ड हो रहे हैं धीरे धीरे ही, बट वी आर मूविंग अहेड, हम डेवलप्ड हो रहे हैं. उसी तरह से ये सारे डाटाज है जिसके थ्रू बताया जा रहा है इनरोलमेंट कितना हो रहा है, इंस्टीट्यूट कितने सारे हैं, डिग्री वाले कॉलेज है, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ है, स्टूडेंट्स कितने इनरोल हो रहे, और टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में कितने सारे हैं. तो इस तरह से उनके डाटा है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. सेकंड जो था, तो देखो हमने एजुकेशन के साथ ही दूसरा पढ़ लिया था फिज़िकल ट्रेनिंग, तो इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन के साथ ही ये इसके साथ ही ऐड कर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ये कर दिया यहाँ पे कि एजुकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल हो गया, और ये पार्ट 2 दे दिया, दैट इज़ हमारा ये फिज़िकल ट्रेनिंग वाला है. तो हमने एजुकेशन के साथ फिज़िकल ट्रेनिंग कंबाइन कर दिया. अब हमारा थर्ड था वो आएगा हेल्थ. तो अगर हम हेल्थ में आते हैं तो हेल्थ में भी देखा जा रहा है कि हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे डिटरमाइन करता है कि फिज़िकल मेंटल एंड सोशल जो है किस तरह से लोग कैसे हैं, वो कितना हेल्दी है. उसके हिसाब से वीक पीपल्स एंड इन पीपल्स जो है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, जो बीमार होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है कंपेयर टू द हेल्दी. सो हिंस इफ़ अ कंट्री वॉन्ट्स टू राइज अप, अगर वो कोई भी देश हो अगर वो सोचता है कि वो आगे बढ़े तो उसे अपने पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, मेक हेल्दी एंड स्मार्ट. उसे हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड ही कैन वर्क. तभी वो अच्छे से करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तब वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू इट ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि वो फिर बाद में ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, विल टर्न इनटू एन ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं और जिससे वो अल्टीमेटली दे कैन स्टार्ट अर्निंग. तो इस तरह से वो ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाएंगे. तो ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था जिससे हमें हमारा पॉपुलेशन को क्या बनाएंगे हम अपने पॉपुलेशन को क्वालिटी पॉपुलेट बनाएंगे. ठीक है, ये टेबल से इंफ्रास्ट्रक्चर्स ओवर द ईयर्स कि अब ये लोग SCPH जो है यहाँ पे लिखा हुआ सब सेंटर, PH मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने सारे हैं, ये सारा डाटा दिया गया है. ठीक है, ईयर वाइज कितने सारे बढ़ रहे हैं. तो इसी तरह से ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हमारा गवर्नमेंट ने बना के रखा है, एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हेडेड होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ताकि वो लोगों के जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और हेल्थ इम्प्रूव करे. नाउ आवर नेशनल पॉलिसी हैज़ स्पेशल फोकस ऑन हेल्थ ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशंस. तो हमारा जो नेशनल पॉलिसीज़ बनाया गया था, नेशनल पॉलिसी, उसमें जो फोकस किया था कि पुअर सेक्शन जो होते बहुत, क्योंकि उनको पूरा फुल न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिल पाता है, उनकी हेल्थ इसीलिए वो बिगड़ती रहती है. तो उनकी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि उनकी हेल्थ हमें अच्छा कैसे करना है. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ दी गई उनके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए. ठीक है, तो इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, ताकि उनकी जो है लाइफ स्पेन जो है वो बढ़े. ठीक है, लंबी उम्र तक रहे, इम्प्रूव करे चाइल्ड केयर में, बच्चों को देखभाल करे. और जो बच्चे जो कम उम्र में छोटे बच्चे जो मर जाते ड्यू टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, का मतलब क्या है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द चाइल्ड हु डाई बिफोर एट द एज ऑफ 5, उससे पहले बहुत से जो बच्चे ड्यू टू अंडर नरिश, क्योंकि उनके पास खाने पीने की कमी हो जाती है. ठीक है, सो इंडिकेट वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम होती है. तो गवर्नमेंट इस तरह से उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन फ्री करवाते हैं. मंथली कहीं ना कहीं देखो कि कैंप लगती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ वैक्सीनेशन दिया जाता है, चाइल्ड केयर होती है. तो इस तरह से अगर ये हर कंट्री अगर करता तो इसका मतलब होता है इट इज़ इंडिकेटर दैट द कंट्रीज आर मूविंग अहेड इन अ गुड प्रोसेस. तो इसका फ्यूचर जो है वो अच्छा है. ठीक है, तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है हेल्थ में. ना सम प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन इंडिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होती है. तो इंडिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल्स, जब हम आज़ाद हो गए ब्रिटिशर्स से, तो हमारे लीडर्स ने सबसे पहले जो एक्सपर्ट्स है, टीम एक्सपर्ट्स ने क्या देखा, ट्राई टू देयर बेस्ट. उन्होंने कोशिश की कि हम बहुत अच्छे से सब मिल के एक तो इलिटरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर दूसरी पॉवर्टी, अनइक्वलिटी,
इरेशनल थॉट, लोगों की अलग अलग विचार, उसे दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, इन सभी चीज़ों से कैसे लड़े। तो शुरुआत किया गया, सम ऑफ आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं now at world level, but it is not false to quote that majority of Indians are deprived of quality good education's quality of deprived of quality then good education's health facilities even their right to work। इतना करने पर भी कहा जाता है कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस जो है अभी भी डिप्राइव्ड है, उन्हें अभी भी पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जैसे फूडिंग हो, गुड एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ ले लो, राइट टू वर्क जो है सभी को बराबर नहीं है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सभी के पास काम नहीं है ना। वी कैन सी, साथ साथ हम देखते हैं जो छोटे होते यूथ होते हैं, ठीक है, यूथ मतलब हो गए जैसे मान लो 20 के बाद के जो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। मोस्ट ऑफ यूथ अटेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन अटेंड करने के बाद भी उनके पास कुछ जॉब नहीं है, फ्यूचर जॉब नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसी तरह से इन्हें सॉल्व करने के लिए नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। हमारे गवर्नमेंट ने और वो कोशिश कर रही है और बहुत हद तक उसे उन्होंने सॉल्व भी किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं हम? अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे हम कहेंगे जिसको जो अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू डू द जॉब, उसे काम करने की इच्छा है, वो काम करना चाहता है, साथ साथ वो जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस है, जो भी उसकी डिज़ायर, जो वेज रेट है, जो उसको रेट आज करेंटली जो वेज रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही, लेकिन फिर भी उसके पास कोई वर्क नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स और पर्सन between 15 to 59 willing to do the job, willing to do the work to earn money, वर्क करने के बाद अर्न मनी तो होगा, बट इफ डज नॉट गेट वर्क, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, उनकी क्वालिफिकेशंस के बेस पे, डिज़ायर वेज जो है उसके बेस पे भी, तो उसे कहा जाएगा दैट ही इज़ अनएम्प्लॉयड। अब हिंस अ पर्सन वी कॉल एज एम्प्लॉयड, अगर कोई ये तो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो अनएम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि क्या हो गया, द पर्सन हु इज द ग्रुप अ पीपल अ person or group of people between 15 to 59 years, he or she is desire to work outside its family, he or she get a job according to its qualifications or ability, and he or she get wages for what he deserves, so the person is said to be as employed। तो यहाँ पे जहाँ पे डज नॉट लगा के रखा, उसको डज नॉट में नॉट हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला है और ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेफिनेशन हो गया। इसमें पॉइंट में बता दिया, इसमें वही चीज़ों को डिफाइन एक सेंटेंस में बता दिया गया। सो इतना ही फ़र्क है। पहला वाला वापस रिपीट कर रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे, अ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट ही इज़ नॉट गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशंस और डिज़ायर वेजेस, द पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब वहाँ पे डज नॉट को नॉट हटा देंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। अब आता है देयर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स इन आवर कंट्री। अब बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारे, लेकिन हम कैसे बोलेंगे, सो इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि जब सिर्फ ऑक्यूपेशन जो भी काम हो रहा है वो कोई पीरियड के लिए होता है या फिर कोई सीज़न के लिए, सीज़न में ही दिया जाता है उसको, बाद में वो क्या है, उसके पास कोई काम नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो उसे कहा जाएगा कि ये सीज़न में ही काम कर पाते हैं, तो बाद में फिर वो बेरोज़गार है, तो इसको कहेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एग्रीकल्चर सीज़न में है क्योंकि सीज़न में ही जब उनको ज़रूरत होती है, तो सोइंग पीरियड, वेडिंग पीरियड, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये 4 काम होते हैं तभी उनको काम मिलता है। बाकी महीने जो 6-7 महीने होते हैं उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द मंथ दे डोंट हैव एनी वर्क, सो दे आर अनएम्प्लॉयड। तो क्या बोलेंगे हमसे हम, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है दूसरा वाला, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी कहा जाता है।
हिडन मतलब छिपना, कि आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन वो दिख नहीं रहा है किसी को कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप छिपे हुए हो वैसे ही। तो इसलिए कहा गया इसे हिडन एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि इन दिस वर्क और इन दिस एक्टिविटी मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर्स आर इंगेज, जितना चाहिए उससे ज़्यादा वर्क वहाँ पे लोग काम कर रहे। जैसे मान लो कि नीड है 4 पीपल्स की, ठीक है, 4 पीपल्स की नीड है, पर्सन लिख लेते हैं, 4 पर्सनस की नीड है, बट वहाँ पर 6 पर्सनस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, 2 पर्सनस है। तो यहाँ पे 4 पर्सन जितना हार्डवर्क कर सकते थे, अब वो कितने लोग कर रहे हैं, 6 पर्सनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब ने अपनी अपनी वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। सो ऑल ऑफ देम आर नॉट गिविंग दे 100%, क्योंकि दे हैव डिवाइडेड द वर्क सो दैट द वर्क हैज़ बिकम ईजियर। उनके लिए भी वो अपना 100% नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा काम करके सभी का काम खत्म हो जा रहा है। लेकिन इफ़ इन केस जो आउटपुट रिजल्ट निकल रहा था कि 4 में जो आउटपुट निकलेगा वो भी 100% निकलेगा, और 6 करेंगे तो भी 100% निकलेगा। तो अगर हम इसमें से 6 में से 2 अगर निकाल लेते हैं तो भी रिज़ल्ट 100 रहेगा, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो इसी तरह से कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग काम करें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बस उसके पास कोई और काम नहीं है इसके लिए। तो एडिशनल वर्कर्स आर रिमूव फ्रॉम द एक्टिविटी। अगर हम लोग एडिशनल वर्कर्स को अगर रिमूव भी कर देते हैं तो उसका प्रोडक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी टाइप के वर्क को, इसी टाइप की एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वापस एग्रीकल्चर्स में ही होता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो है अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिल पाता तो वो क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर्स में ही जाएंगे। अब जहाँ 4 मेंबर्स कर रहे थे वहाँ पे 6 मेंबर्स कर रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा है उनके पास कोई जॉब नहीं था। तो यहाँ पे अगर 2 को हम निकाल भी देते, 2 माइनस करते, तो प्रोडक्शन सेम ही होता। इसी तरह से 2 ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे देखो डिफरेंसेस दिया गया सीजनल और डिस्गाइज्ड में। सीजनल जो होता है सीज़न के अकॉर्डिंग होता है, ये बहुत शहरों में भी होता है, गांव में भी होता है, ठीक है। रूरल एरिया दैट इज़ विलेज एंड अर्बन दैट इज़ सिटीज़, दोनों में। जैसे सिटीज़ में रेनी सीजन में मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्क जो कम हो जाता है, नहीं होता है, रेनी सीजन में थोड़ा रोक दिया जाता है। तो इसी तरह से ये सीजनल हो जाएगा। अब सीजनल में एक और ले लो, शुगर कैन इंडस्ट्री जो है वो सीज़न में ही वर्कर्स को अपॉइंट करती है, क्योंकि सीज़न जो है शुगर कैन में मोस्टली 5 मंथ्स के लगभग लग जाता है उसको रिप होने में। फिर उसके बाद वो कटिंग होने के बाद जब इंडस्ट्री जाती है तो इट वर्क नीडेड ओनली फॉर 2 to 3 मंथ्स, या मान लें मैक्सिमम 4 मंथ्स। तो इसके लिए उनको वर्कर्स चाहिए होता है सीजन्स के टाइम पे। तो ये भी एक सीजनल एग्जाम्पल हो जाएगा। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है कहा गया वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नीडलेसली इंगेज, क्योंकि उनका मतलब कहीं और जगह नहीं था इसलिए वो वहाँ काम कर रहे। और ये मेनली कहाँ देखा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही पाया जाता है। अब हम लोग मूव करेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, वेल एन एजुकेटेड और वेल ट्रेंड इंडिविजुअल विलिंग टू डू वर्क बट डज नॉट गेट अ जॉब। लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, उसकी इच्छा है, उसने पढ़ाई भी की है लेकिन जॉब ढूंढ रहा है, नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। तो मैनी यूथ हैविंग गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है उसके पास, मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, बट फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उसे कहा जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये भी कहाँ दिखने को मिलता है हमें, अर्बन एरियाज़ में, शहरों में। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी आपको जब जॉब नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है देश के लिए भी। अगर लंबे समय तक अगर उसको जॉब नहीं मिल पाता तो वो उससे इधर उधर भटकने से घूमते रहते हैं, तो क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि वो यूथ जो है लंबे समय तक अगर कोई जॉब नहीं रहेगा तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स अलग उनको लेके चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर इस तरह से वो साइकोलॉजिकल कंडीशन की ख़राब हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है। अगर वो रिसेंटली स्टडीज़ में देखा गया है कि ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो मेनली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जो 10th और 12th पास होते हैं उनको जॉब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी जॉब करने के लिए
विलिंग होते हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं, बट जितने हम पढ़ाई लिखाई जितना ज़्यादा करते हैं, वी नीड अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जॉब नहीं मिल पाता। तीसरा कि जॉब जो है, सम कैटेगरीज ऑफ जॉब्स हैव मोर देन रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स, फॉर एग्जाम्पल वाइल इन अदर देयर इज स्कैसिटी ऑफ मैन पावर। तो ये होता है कब, टेक्निकल स्किल, मतलब आपने तो पढ़ाई की थी लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं है, तो जहाँ पे जॉब में वैकेंसी है वहाँ पे कौन से लोग चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए, तो इसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे कम लोग से ही काम हो जाता है। तो इसी तरह से बाकी जो लोग हैं उनको नीड नहीं होता है, तो इसी तरह से कहा गया ये प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कैसिटी ऑफ मैन होता है, मैन पावर भी हो जाती है कहीं कहीं कुछ कंट्री में, उनके पास स्किल्ड टेक्नीशियंस की प्रॉब्लम नहीं होती, मैन पावर की। वो तब होता है जब जो कंट्री में पॉपुलेशन की कमी होती है। अब आ रहा है हमारा एडवर्स रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, तो देखा गया वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमने पढ़ा कि हमारा अगर ह्यूमन रिसोर्स जो है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसको, अगर हम लोग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसके मतलब हमें ये नहीं कि हमारे वो नेगेटिव पॉइंट, हम उसको पॉजिटिव बना सकते थे। किस बेस पे, हमने देखा एजुकेशन के बेस पे, फिज़िकल ट्रेनिंग के बेस पे और हेल्थ के बेस पे। तो हमें उसे ऐसा क्या बना सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। हेल्थ लगाने के बाद हम उसको ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं, तो हमारे लिए प्रोडक्शन करेंगे, देश के लिए इनकम करेंगे। लेकिन अगर हम उसको कुछ नहीं कर रहे, वेस्ट बना के रख रहा, वेस्टेज ऑफ, तो वो हो जाएगा हमारा कि वो देश का भी वेस्टेज हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इज़ लाइफ इज़ यूजलेस, वो जैसे ज़िंदगी रहते हैं उनकी कोई मकसद नहीं होता लाइफ में, वो फेल है, कहीं कुछ नहीं कर सकते, देश में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन डू नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि वो उनके पास काम ही नहीं है, तो उनके पास पैसे भी नहीं है, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, मेंबर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। साथ साथ अगर पैसे नहीं है तो अपनी हेल्थ की स्टेटस भी उनका अच्छा नहीं रहेगा, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन लेवल उनकी बच्चों की भी अच्छी नहीं रहेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ नो अर्निंग। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, और उनके पास उम्मीद नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और इसी तरह से यूथ जो है घूमते रहते, भटकते रहते इधर से उधर। फोर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेन टू इंक्रीज इकोनॉमिक वर्कलोड। अगर आप बेरोजगार रहोगे तो देश का इकोनॉमिक जो है वो बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि यूथ कमा नहीं रहा है, तो हमारा इकोनॉमिक का लोड बढ़ जाएगा। क्यों, जो लोग कमा रहे हैं लोड उनके ऊपर जाएगा। वर्किंग लोग जो है जितना कमा रहे उनका जो है वो अगर डिवाइड करेंगे तो उनके ऊपर जो है लोड बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन का जो है, तो कहा जा रहा है कि यूथ जो है, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो लाइबिलिटी से मतलब बोझ है, किसके ऊपर, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि उनको भी लेके चलना पड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट एडवर्स अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल सोसाइटी। एक तो उसकी खुद की लाइफ की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रही है और दूसरी सोसाइटी की भी। तो इसी तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर लर्निंग, एजुकेट करते हैं तो हमें सबसे पहले हम उसी लेवल पे जाएंगे, अपने आप को फिज़िकल ट्रेन करेंगे, हेल्थ के लिए देखेंगे, तब जाके। साथ साथ ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है, जो हो सके आपको जैसा आता है। स्टार्टिंग में अगर छोटी सी जॉब मिलती है तो हमें करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्वालिफिकेशन इतनी हाई है। एटलीस्ट दे शुड बी अ बिगनिंग, वी शुड नॉट बी अ लाइबिलिटीज, हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉजेज देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द कम्बाइंड इफेक्ट्स ऑफ मैनी फैक्टर्स। क्या क्या, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन हो रहा है उसमें बच्चे लोग, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, वो स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग भी, मतलब जो पढ़ाई किया है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेना चाहिए, तब जाके वो इजीली क्रिएट कर सकते। जैसे द एजुकेटेड यूथ हैव डिग्री बट दे डू नॉट हैव स्किल टू डू देयर वर्क क्रिएटिंग थिंग्स। उनके पास डिग्री है लेकिन वो कोई काम को क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उस तरह से सिखाया नहीं गया है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ों को यूज़ नहीं किया गया है। दे सिंपली स्टैंड इन द क्यू ऑफ वाइट कॉलर जॉब, मतलब लाइन में खड़े हो गए क्योंकि हमें जॉब करना है। वाइट कॉलर इसलिए बोला जाता है ऑफिस में जो यूनिफॉर्म कोड्स होते हैं उसके हिसाब से, बट कैन नॉट मेक अ वे फॉर देमसेल्फ बाय अडॉप्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयड।
कि हमें जॉब में लाइन में लगना, जॉब के लिए जॉब ढूंढना, ये नहीं सोचते हैं कि खुद एक कुछ अपने लिए बना ले, इंडस्ट्री बनाए, कुछ काम छोटा से शुरुआत करे और दूसरों को भी नौकरी दे उस पर। तो इसी तरह से यहाँ पे लैक ऑफ ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो उसमें कमी आ रही है। मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज मॉडर्न मशीन इन वेरियस फील्ड देखा जाता है आजकल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में। तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि मशीन अब वो जो है ऑपरेट करने के लिए एक चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को रिप्लेस करें मशीन के थ्रू। अ मशीन इज़ डूइंग अ वर्क ऑफ 100 पीपल मोर एट अ टाइम। तो वो मशीन अकेला ही कर सकता है 100 इंसान का काम एक समय में, तो फिर वो 100 लोगों को क्यों एम्प्लॉय करेंगे। तो इसी तरह से वो मशीन में जा रहे हैं। फिर दूसरा आता है लास्ट की डिफेक्ट्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग ऑल्सो। कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग में भी कमी आ रही है, क्योंकि सर्टनली आवर लीडर्स हैव लेफ्ट सम होल्स, उसमें कुछ लोग छोड़ दिया, कुछ कमी छोड़ दिया है, जिसके कारण कहा जा रहा है दे आर फेल्ड इन प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी टू देयर चिल्ड्रंस, कि अपने बच्चों को वो क्या करेंगे, किस तरह से जॉब्स देंगे, या फिर उनको ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे, ऐसा कि वो खुद अपने आप में जब वो पढ़ाई करे तो खुद अपने लिए कुछ क्रिएट करे, ना कि वो डिपेंड रहे किसी के ऊपर। तो आज की सिचुएशन जो है अपने आप में यही करना ज़रूरी है कि हमें जॉब जो है लैक ऑफ ओरिएंटेड ये नहीं करके हमें खुद अपने आप में कहा गया जो कि हम खुद अडॉप्ट करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम अपना एजुकेशन लेवल को बढ़ा के और हम ऐसा कोशिश करें कि हम अपने आप में खुद अपने आप पैरों में खड़े हो जाएं, ना कि हमें डिपेंड होना पड़े, किसी पे जॉब ढूंढना पड़े, खुद काम शुरू करें कुछ ना कुछ। उससे तो आप करेंगे फिर आपने किसी और को भी एम्प्लॉय करोगे, तो ऐसे ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सुधार होगी देश के अंदर। तो हमारा चैप्टर जो है आज ही कंप्लीट हो गया, हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क। क्वेश्चन आंसर जो भी हमने भेजा उसको आप कंप्लीट कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।